ان دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالہ سے کرسچنز کے بیچ میں اور مسلم کے بیچ میں مختلف سوالوں کے حوالہ سے ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے، مگر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے جو میں پچھلے ایک کلپ کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں ان مناظروں سے بچنا ہے، اور بائبل کی تعلیم ہے کہ ہمیں انجیل کی منادی کرنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ پروگرام کے حوالہ سے اور اس تعلیم کے اندر یہ سوال جو پوچھا جا رہا ہے کیا یسوع خدا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر ہم کرائسٹ کے بابت میں جانتے ہیں، اور غیر قوموں کے حوالہ سے اور جو یسوع کو خدا نہیں جانتی تو ہمارا فرض ہے کہ ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کو پروفٹ کے طور پر عظیم پروفٹ آلریڈی مانتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، اور یہ ایمان لانا بہت اچھی بات ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایک کنانی عورت صرف اس بات پہ ایمان لے آئی کہ یسوع مسیح شفا دیتا ہے، تو کرائسٹ نے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل کے اندر نہیں دیکھا۔ کرائسٹ نے یہ بات کہہ دی کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈالنا روا نہیں ہے، تو غیر قوموں کو، جینٹائلز کو اس وقت ڈاگ سے تشبیہ جاتی تھی، ناپاک جانوروں سے، پر وہ ایمان ہی سے اپنی بیٹی کے لیے شفا لے آئی۔ یہ بات کہ ڈاگز بھی، کتے بھی مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں، تو کرائسٹ سے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، تو وہ ہیلنگ سے ہی ایمان لے آئی۔ تو یہاں پر جو یہ سوال کرتے ہیں کیا یسوع خدا ہے، پر وہ اس کو آلریڈی ایک پروفٹ، عظیم پروفٹ مانتے ہیں، تو یہ ایمان لانا ہی ان کو مسیح کی طرف لے کے آنے والی بات ہے کہ وہ جانتے ہیں، پر وہ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کو جاننا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ پھر ایک خادم کے سپرد یہ کام خدا نے کیا ہے، جیسے میرے سپرد ہے، دیگر خادموں مقدسوں کے سپرد ہے، جو ڈاکٹرنز کو جانتے ہیں، جو بائبل کی تعلیم کو جانتے ہیں، جو ٹروتھ سے واقف ہے، راہ حق سے واقف ہے، کہ کرائسٹ نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں۔ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، جیسے جسٹس فائز عیسیٰ یہ ورس سچائی سے واقف ہوگے تو بہت جگہ پر انہوں نے اپنی تقریر خطاب میں کوٹ کی ہے، تو یہ بڑی ان کو اچھی لگتی ہے سچائی سے واقف ہونا۔ پھر ایک جگہ جسٹس منصور نے بھی رومیو کے قائد ہامنی کے حوالہ سے دی ہے، یعنی اس ملک کے اعلیٰ کرسیوں کے اوپر انصاف کرنے والے، علم سے واقف لوگ، وہ بائبل مقدس کی ٹروتھ سے واقف ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ذاکر نائک مسیح کو پروفٹ کے طور پر، عظیم پروفٹ کے طور پر جانتا، ہیلر کے طور پر کہ بڑے بڑے معجزے کہ ایک کماری مریم سے پیدا ہوا، پر اگر یہ سوال کا جواب انہیں نہیں آتا کہ یسوع خدا ہے، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ان کو گائیڈ کریں، سمجھائیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر یہ سمپل ہے، جو بائبل مقدس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو کرائسٹ ان کا ذہن کھولتا ہے تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ جائیں۔ تو جب یہ سوال کسی کے اندر بھی آتا ہے تو معنی یہی ہے کہ وہ کتاب مقدس کو پڑھ نہیں رہا اور ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں رہا۔ وہ خدا سے کہے مجھے سمجھا، تو یقیناً اس کو سمجھ آئے گی۔ جو ان ورسز میں اس کلام کے اس کلپ کے اندر میں سمجھانا چاہوں گا، تو اس میں سر فہرست بات یہی ہے، جب مسیح خدا ہے، جاننا ہے، تو ہمارے پاس خدا کی ذات کا نام ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات کیا ہے۔ تو خدا کی ذات اندیکھا خدا ہے، یعنی اسپرٹ بینگ، ان سین گاڈ ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، گاڈ از اسپرٹ۔ تو بائبل مقدس کے اندر جو اندیکھا خدا ہے، جب بائبل مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو خدا کو عبرانی زبان کے اندر الوہیم کہا جاتا ہے، اور الوہیم خدا کی ذات، یعنی خدا کا نام پھر یاوے ہے، یہوہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک ایسا شخص جو متلاشی ہے، جاننا چاہے خدا کی ذات کو، تو پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، بائبل مقدس کے اندر، توریت کے اندر، انبیاء کے صحائف کے اندر، انجیل کے اندر جو خدا کی ذات کا نام ہے، ہمیں یہاں ہی سے بتانا ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، انجیل مقدس اور توریت، انبیاء کے صحائف، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہاں پر ہی خدا کی ذات کا نام ہے جو الوہیم ہے۔ تو یہ سنگولر یوز کیا جاتا ہے، مگر اپنے اندر یہ پلورل رکھتا ہے، یعنی یہ الوہیم جب کہا جاتا ہے، الوہیم، تو ایل کا مطلب
गॉड है, हिम यानी प्लूरल के अंदर आता है जिसमें कसरत पाई जाती है, पर ये अनदेखा खुदा है, तो अनदेखे खुदा में उसका कलाम और होली स्पिरिट उसमें पाया जाता है। ये स्पिरिट बीइंग है। तो जब हम एलोहिम कहते हैं तो जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर के अंदर लिखा है बराशीत 12 फथाशा माइम आहज एलोहिम, यानी इब्तिदा में खुदा ने जमीन आसमान को पैदा किया। तो जब एलोहिम आया है खुदा की जात के हवाला से हिब्रू के अंदर एलोहिम, जब हम एलोहिम की बात करेंगे तो ये मतलब गॉड है, खुदा है, जिसका मतलब और जिसमें कसरत पाई जाती है। इसलिए हम ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी एलोहिम जो वाहद है मगर अपने अंदर प्लूरल सेंस रखता है। तो एलोहिम खुदा, और उसका जो नाम है वो यावे है, यहोवा नाम है। और ये खरूज 30 बाब के अंदर मूसा से खुदा ने खुद कहा कि आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, और उसका नाम यहोवा। खरूज 15 बाब में मूसा ने ये कह दिया कि उसका नाम यहोवा है। ज़बूर के अंदर जब हम पढ़ते हैं वहां दोनों नाम इकट्ठे आए हैं कि खुदा की हमद व सना हो, उसकी मदद सराई हो। उसका नाम या है, यहोवा का जो शॉर्ट है या, तो या यहोवा उसका नाम है, यहोवा एलोहिम उसका नाम है, यानी खुदा जब हम एलोहिम कहते हैं उसका नाम यहोवा है। 30 बाब खरूज में लिखा तो मूसा ने कहा मैं अपने भाइयों में जाकर क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा। उसने कहा ये जाके कहना आई एम दैट आई एम ने भेजा है, मैं जो हूं ने भेजा है। तो जब हम मैं जो हूं ने भेजा है तो ये खुदा की जात का नाम है, आई एम, मैं हूं या यहोवा। तो यहोवा और आई एम का एक ही मतलब है, एटर्नल वन या एग्जिस्टिंग वन। ये दोनों नाम अब्दी होना को बयान कर रहे हैं। आई एम कहें या यावे कहें, यानी खुदा की जात का नाम आई एम है या यावे है, यहोवा है। तो ये दोनों नाम मिलते हैं। पैदाइश की किताब के अंदर लोग यहोवा का नाम लेकर इबादत करते थे, उसकी जगह अदोनाय नाम लेकर, यानी अदोनाय यानी लॉर्ड कहकर बनी इस्राएल दुआ करते हैं, पर उसका नाम यावे है, यहोवा है। तो ये दोनों नामों के हवाला से किसी को भी खुदा की जात के बारे में सीखना है तो ये जानना चाहिए। जिसको और शॉर्ट लोग कह देते हैं या इलाही, तो या यहोवा का शॉर्ट है और इलाही एलोहिम का है। बाज शिया हजरात ये कह देते हैं कि क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट ने अली अली कहा, वहां एली एली एलोही एलोही कहा गया, यानी वहां पर एलोहिम के हवाला से कहा गया, इलाही होने के हवाला से खुदा की जात को पुकारा गया। तो वो भी अपनी करेक्शन कर ले। तो जो बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि हमारे पास नाम खुदा की जात का वाजे हो, यानी तमाम अंबिया ने, अब्राहम ने, दीगर ने, जो तौरेत के अंबिया थे और अंबिया के सहाइफ के अंदर जो खुदा की जात का नाम इब्रानी में है वो एलोहिम है, पर हम एलोहिम ही कहेंगे। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी खुदा का नाम एलोहिम ही है और एलोहिम खुदा का नाम यावे है। जब यहोवा उसका नाम है जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग वन या एटर्नल वन, अब्दी वन, आई एम या, तो यही क्राइस्ट ने आगे जाकर अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो खिदमत की तो यही कहा। तो जब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं तो ज़बूरों के अंदर दाऊद का ज़बूर ये बताता है कि ज़बूर 110 के अंदर ये लिखा है कि यहोवा ने मेरे खुदामंद से कहा, यानी यहोवा ने यहोवा से कहा। तो मैं ये बता चुका हूँ एलोहिम की जात के अंदर जो उसका नाम यहोवा है। तो जब खुदाई सलूस पर ईमान करते हैं तो क्राइस्ट होली स्पिरिट बाप यहोवा का नाम, तो हम यहोवा एलोहिम के हवाला से ये यहोवा ही है, यानी बाप भी यहोवा है, क्राइस्ट भी यहोवा है, होली स्पिरिट भी। पर हम इसको वननेस में नहीं, हम इसको खुदाई सलूस में ट्रिनिटी के अंदर लेते हैं, यानी एलोहिम जो खुदा है उसका नाम यहोवा है। तो ये साफ वाजे दाऊद के ज़बूर के अंदर हो गया कि यहोवा ने मेरे खुदामंद से कहा। अमाल की किताब में तर्जमा है खुदामंद ने मेरे खुदामंद से कहा, यानी लॉर्ड ने लॉर्ड से कहा। पर इब्रानी में कहेंगे यहोवा ने यहोवा से कहा, तो यहाँ बाप भी यहोवा और उसका बेटा भी यहोवा, यानी मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो क्राइस्ट ने इसी के ऊपर जोर अपनी मिनिस्ट्री में दिया है। जब यहूदी आकर ये कहने लगे, फकी फरीसी पूछने लगे क्राइस्ट के हवाला से, तो क्राइस्ट ने कहा कि तुम मेरे हक में क्या कहते हो, क्या समझते हो। तो वो कहने लगे कि तू इब्ने दाऊद है। तो क्राइस्ट फिर यहाँ ज़बूर 110 का हवाला देता है कि दाऊद तो खुद मुझे खुदामंद कहता है, तो मैं फिर कैसे इब्ने दाऊद हुआ, दाऊद का बेटा
कैसे हुआ? तो क्राइस्ट ने अपनी इस खिदमत में उनके सवाल का जवाब दिया कि मैं इब्ने दाऊद नहीं हूं, दाऊद का खुदावंद हूं। यानी खुदावंद का मतलब यहोवा, और यहोवा खुदा का नाम है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ बता दिया कि मैं खुदा हूं, यानी यहोवा हूं। और ये ज़बूर का रेफरेंस देकर, इसके अलावा जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो रहा था मसलूबियत से पहले, कि हमने बाइबल की रूह से अज़रुए अंजील हमने बताना है कि किताब मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये कहा, यूहन्ना 13वां बाब 13वीं आयत के अंदर अपने डिसाइपल शागिर्दों से कहा कि मैं खुदावंद ने तुम्हारे पांव को धोया है, तुम भी इसी तरह भाइयों के साथ करो। तो यहाँ पर क्राइस्ट ने उनके ऊपर वाज़ेह किया कि मैं खुदावंद हूं और तुम भी मुझे खूब खुदावंद कहते हो, यानी यहोवा। और फिर सैनिड्रियन के अंदर भी जब यीशु मसीह की पेशी हो रही थी, तो सरदार काहिन मसीह से पूछता है, क्या तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है? तू खुदा का बेटा मसीह है? तो उसने पहले तो कहा, तूने खुद कह दिया, और फिर आगे कहा मैं हूं। तो फौरन फिर सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, ये कुफर बोल रहा है, ये ब्लास्फेमी के जिम्मे आ रहा है, इसी वजह से तो उसे क्रॉस दिया। यानी उसने अपने आप को खुदा माना, तो उन्होंने उसको मसलूब करने के लिए ले गए। और ये सैनिड्रियन के अंदर ये वाकया हुआ है। फिर उसने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर मुर्दों को जिंदा किया है। जो मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, तो मुर्दों को जिंदा करने वाला मर गया, दफन हुआ, वो खुद भी मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो यहोवा खुदा है, यानी एलोहीम, जो खुदा की जात, जो खुदा का मानी है एलोहीम के अंदर, उसका नाम यावे है। तो क्राइस्ट ने ज़बूर 110 का हवाला देकर ये बता दिया कि दाऊद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से, यानी यहोवा ने यहोवा से कहा, मैं तो दाऊद का खुदावंद हूँ, खुदा हूँ। और ज़बूर 144 के अंदर जो लिखा है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद यानी यहोवा खुदा है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम बाप यहोवा के हवाला से पढ़ते हैं तो बनी इसराइल ईमान रखती थी। जब हम क्राइस्ट के हवाला से, तो हमारे पास ज़बूर 110 का ये हवाला क्राइस्ट ने खुद इसको कोट किया है। फिर पतरस ने मसीह के जी उठने के बाद जब होली स्पिरिट नाजल होता है 120 की जमात के ऊपर, तो यही बनी इसराइल को पैगाम देते वक्त कहा कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया है, खुदा ने उसे मसीह भी किया, खुदावंद भी। यानी मसीह का इंतजार करने वाले कि मसाया आएगा, ये बनी इसराइल का ईमान था, उसी को खुदावंद भी किया, यानी यावे भी किया। तो ये दोनों टर्म आ रही हैं। फरिश्ता ने जब आकर खुशखबरी मरियम को दी, तो यही कहा, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, यानी मसाया, जिसके ऊपर होली स्पिरिट, जिसका इंतजार बनी इसराइल कर रहे हैं, वो खुदावंद होगा, मसीह खुदावंद आएगा, यानी ये यहोवा खुदा की बात कही गई है। तो मैंने शुरू में बता दिया कि एलोहीम खुदा का मतलब हमें पता होना चाहिए, उसका नाम यावे है, आयम उसका नाम है। तो क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के अंदर उसने कहा, राह हक जिंदगी मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। तो मुख्तलिफ आयम जो क्लेम किए गए हैं, तो क्राइस्ट ने मैं हूं सैनिड्रियन के अंदर भी कहा, जिसकी वजह से उसको फिर मसलूब करने को ले गए। फिर हम पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि वो भी पतरस की तरह ये साबित करता था यीशु ही मसीह है, यानी यीशु जिसके ऊपर रूल कुदस नाजल हुआ। और यीशु मसीह का जब मुर्दों में से जी उठना है, तो फिलिपियो 2 बाब में कहता है उसने अपने आप को खाली कर दिया, यानी डिविनिटी रखता हुआ, यानी खुदा की जात के अंदर कलामे खुदा जो इब्तिदा से था, स्पिरिट बीइंग, वहां जब खुदा की जात के अंदर है तो डिविनिटी के अंदर है। जब ह्यूमैनिटी के अंदर आता है, जब हम हाइपोस्टेटिक यूनियन की बात करते हैं, यानी डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया है, तो यानी वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। यानी एक ही वक्त के अंदर जो कलाम खुदा की जात के अंदर जब जिस्म ले लेता है, तो गोया डिविनिटी रखता ह्यूमैनिटी के अंदर आया। और यही बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि वो कामिल इंसान कामिल खुदा है और उसकी प्रस्तिश है। और बाइबल मुकद्दस फिलिपियो 2 बाब के अंदर पौलुस रसूल यही तो कहता है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, यानी डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी में आता है, तजस्सुम के अंदर आता है, दुनिया का गुनाह सिन अपने ऊपर लेकर उनको आजाद करने, रिहाई देने के लिए, कफारा की राह से पाक करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया और सलीबी मौत गवारा की, यहां तक पस्त कर दिया। और आगे लिखा है खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम
बख्शा जो सब नामों से आला है। तो ये यहोवा नाम ही है जो खुदा की जात का है। यानी खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिने हाथ बैठ। तो जब वो मुर्दों में से जी उठता है तो खुदा के दाहिने हाथ थ्रोन के ऊपर जा बैठता है। तो ये बैठना ये बताता है कि वो यावे है, तो उसे वो नाम यानी यहोवा नाम दिया गया। तो लिखा है कि हर जुबान जो इकरार करे, जो ईमान लाए कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यानी यीशु जो पैदा हुआ दुनिया को छुड़ाने के लिए, जिस पर रूह आया उसी को खुदावंद किया, मसीह भी किया खुदावंद यानी यहोवा भी, यानी यीशु ही खुदा है। इसलिए पौलुस फिलिपियों दूसरे बाब में कहता है हर घुटना उसके सामने झुकता है, चाहे आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का हो। और मुकाशवा की किताब 5वें बाब में लिखा है उसने आसमान पे तक देखा और वहां पर ज़िबा किया हुआ बरा भी देखा, और तमाम करोड़ों फरिश्ते जानदार और बुजुर्ग ये कहते हैं ज़िबा किया हुआ ही अदर कुदरत के लायक है। लिखा है उन्होंने गिरकर सजदा किया। और आज यहाँ पर भी ये ऐलान किया जा रहा है यीशु मसीह ही खुदावंद है, क्योंकि ज़बूर 110 के अंदर यहोवा ने मेरे यहोवा से कहा, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। तो एलोहीम जिसका नाम यावे है यानी आई एम है, यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ये कहा कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो यानी मैं हूँ। यही सैनिड्रन में किया और मौजूद खिदमत के अंदर ये दिखता है कि मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा का बेटा यहोवा है, कुदरत रखता है और उसी के नाम से बदरूहें निकलती हैं, वही निजात देता और शिफा देता है। यहाँ जो बात मैं समझाना चाहूंगा दुनिया को कि यीशु मसीह ही खुदा है, क्योंकि नबूवत की राह से नबियों ने जो कहा है कि खुदावंद है मेरे खुदावंद से, यानी यीशु ही खुदावंद है। और ये यीशु मसीह ने दाऊद के हवाला से कहा कि मैं इब्ने दाऊद नहीं, दाऊद मुझे यहोवा कहता है, खुदावंद कहता है। सैनिड्रन के अंदर भी कहा मैं हूं, तो उन्होंने कपड़े फाड़ कर फिर मसरूबियत के लिए ले गए। तो हमारी बात वाज़ेह हो जाती है कि यीशु मसीह ही खुदा है जिसकी प्रस्तिश है। पौलुस कहता है हर घुटना उसके आगे झुकता है, चाहे जमीनियों का चाहे आसमानियों का। और कुलसियों के खात में लिखा अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुझे होकर सुकूनत करती है। यीशु ही खुदा है, डिविनिटी भी रखता है और ह्यूमैनिटी के अंदर आया, यानी हाइपोस्टेटिक यूनियन, यानी एक ही वक्त में कामिल इंसान और कामिल खुदा। खुदावंद आपको बरकत दे।